Good morning, dear students. This is your teacher Sachin Khurana, and today we will start with chapter 9 of Indian Economic Development, that is Environment and Sustainable Development. We all know that the economic development we have achieved so far, it has already come at a very high price, and that price is the cost of environmental quality. If the environment is left to itself, it can support life for millions of years. लेकिन जो disruptive scheme है यहाँ पे, that potentially disruptive element is human species. Human beings क्या कर रहे हैं? Owing to modern technology, वो intentionally और unintentionally far reaching and irreversible changes ला रहे हैं environment के अंदर. Now let us understand the meaning of environment and its functions. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. So it has major two components, planetary inheritance and all resources. Let us discuss its components. Its components are divided into two, that is biotic and abiotic factors. Biotic is all living elements and abiotic is all non-living, right? Like air, water, land, rocks and sunlight. Let us understand the functions. The environment performs majorly four functions. That is, it supplies resources, renewable and non-renewable resources both. It assimilates waste. It sustains life, and it also provides aesthetic services like scenery. We are on threshold of environmental crisis, or we have to analyze the functions performed by the environment in purview of environmental crisis. तो पहले analysis of function करेंगे 1 and 2 का, that is it supplies resources and it assimilates waste. The rising population of developing countries and the affluent consumption and production standards have developed world have placed a huge stress on the environment in terms of its first two functions. तो हम बात करेंगे यहाँ पे absorptive capacity की. It means the ability of the environment to absorb degradation. थर्ड को एनालाइज करेंगे, that is it sustains life. यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कैरिंग कैपेसिटी की. अब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? रिसोर्स अट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. इसको बोलते हैं बेटा कैरिंग कैपेसिटी. The past development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good. Yes, आज की डेट में पानी जो है वो इकोनॉमिक गुड बन गया है. एनालाइज करेंगे फोर्थ फंक्शन, दैट इज इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी. इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया है और टूरिज्म को प्रमोट किया है. अब टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेक पे रखा है. तो बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या. सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हम इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करें कि जो आने वाली जनरेशंस हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, वो किसी भी टाइप का लॉस बियर ना करें, वो भी उन रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा पाए. The opportunity cost of negative environmental impacts are high. Do you agree? Give reasons. The answer is yes. The answer is yes. कैसे देखते हैं? पहला है जी कॉस्ट ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज. जब हम बहुत ज्यादा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देते हैं तो क्या होता है? हम जानते हैं कि वो रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग जाते हैं, राइट? एंड वी आर कंपेल्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज. बहुत ज्यादा उस पर पैसे लग रहे हैं. नेक्स्ट इज द हेल्थ कॉस्ट. एडेड टू दीज आर द हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड environmental quality. The decline in air and water quality have resulted in increased incidence of respiratory and waterborne diseases. और उसके ऊपर भी खर्चा बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ये बहुत बड़े ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिसके साथ साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बढ़ती जा रही है, राइट? ये बेटे फोकस पॉइंट्स हैं. You can pause the video and read them very carefully. These are very important.
अबाउट ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, बहुत केयरफुली पढ़ना आपको इसको। Compare the situation of environmental problems in early civilization with now. Are the environmental problems new to the century? Have the environmental issues of waste or pollution become critical today or highlight the reasons for environmental problems? तो हम कहेंगे yes, it is a recent phenomena. In the early days of civilization बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज है। तो हम देखें कि अर्ली डेज में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं थी, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज और सर्विसेज की उतनी डिमांड नहीं थी, उनकी सप्लाई से वो कम थे। यानी कि जो पॉल्यूशन था वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट की कंट्रोल में था। लेकिन आज की डेट में क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है रिसोर्सेज की फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ गया है, सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप रिवर्सल फॉर्म में आ गया है, राइट। इसीलिए एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल टुडे। नेक्स्ट कम्स डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके। द वेरी फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द अदर इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अ थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट। अभी क्या कहता है, स्टेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में इंडिया जो है उसके पास अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है इन द टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, hundreds of rivers and tributaries, lush green forest, plenty of mineral deposits beneath the land surface, vast stretch of Indian Oceans, ranges of mountains. जो ब्लैक सॉइल है हमारी डेक्कन प्लेट्यू में, वो सूटेबल है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, और वहां पे इसीलिए बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उस रीजन में। जो इंडो गैगेंटिक प्लेन्स हैं जो स्प्रेड होते हैं अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, वो मोस्ट फर्टाइल है, इंटेंसली कल्टीवेटेड है और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड है। इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं चाहे वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन दे प्रोवाइड अ ग्रीन कवर फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड नेचुरल कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, इंडिया अकेले के पास 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन ओर रिजर्व है। हमारे पास कोल बहुत है, नेचुरल गैस है, बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, नाइट, मैग्नीज, जिंक, ये सब चीजें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में बहुत वास्टली अवेलेबल है। The developmental activities in India have resulted in the pressure on its finite natural resources besides creating impact on human health and well-being। हम इनको गलत तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट एग्जॉस्ट कर रहे हैं और आखिरकार हमें ही नुकसान हो रहा है। Now next comes the B part, that is the threat to India's environment poses a dichotomy, that is it is twofold, or explain the effects of economic development on resources and environment, third explain the challenges to Indian environment। अब यहाँ पे बात करेंगे जो डायकोटोमी है वो क्या है। पहला है थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक हो गया पॉवर्टी इंड्यूस्ड, एक हो गया पोल्यूशन, ठीक है जी, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से आ रहा है या वेहिकुलर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज। अब देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया क्या है। एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। अब प्रायोरिटी एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया क्या है। द वेरी फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इंडिया इज वन ऑफ the world's 12 mega diversity centers, some 45,000 plant species and 89,000 species of animals have been found over here। तो फ्लोरा एंड फौना की बात कर रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि इंडिया इज इंचिंग टुवर्ड्स अ स्टेटस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिकॉज 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड फ्लोरा एंड फौना आर ऑन द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। क्लियर है जी। तो इसमें से अराउंड
4500 एंड 8900 स्पीशीज जो हैं वो आज की डेट में दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. एयर पोल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हीकलर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है एंड इट इज देयर इज अ डिक्लाइन इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर. स्टेप्स टू बी टेकन. अब हमें क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, रिसाइकल एंड रीयूज वाटर, वाटरशेड मैनेजमेंट होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए एंड डीसैलिनेशन ऑफ वाटर होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब हमारे पास तीन मेजर सोर्सेज हैं सॉलिड वेस्ट के, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल, जो हॉस्पिटल से आता है. अब इसको कैसे करें मैनेज? हमें सेग्रीगेट करना चाहिए ऑल द सोर्स ऑफ वेस्ट. सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सेग्रीगेट तो करो, लेकिन कैसे करो? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. गवर्नमेंट एफर्ट्स लाइक स्वच्छता अभियान जो है या स्वच्छ भारत अभियान जो है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो पहला आ गया लैंड डिग्रेडेशन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अनस्टेबल फ्यूल वुड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, encroachment into forest land, forest fires, non-adoption of adequate soil conservation measures, improper crop rotation, indiscriminate use of agrochemicals such as fertilizers या pesticides, improper planning and management of irrigation systems, extraction of groundwater in excess of recharge capacity, open access resource and पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल. ये बेटा डेटा आपको याद करना है, राइट. नेक्स्ट आ गया डिफॉरेस्टेशन. द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.08 हेक्टेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर टू मीट द बेसिक नीड्स. Soil erosion. Estimates of soil erosion show that soil is being eroded at a rate of 5.3 billion tons a year. जिसकी वजह से कंट्री क्या लूज करती है? 0.8 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फोरस एंड 26.3 मिलियन टन्स ऑफ पोटेशियम. सेकंड कम्स थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड व्हीकुलर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज. वैसा क्यों हो रहा है देखिए. In India, air pollution is widespread in urban areas where vehicles are the major contributors and a few other areas which have a high concentration of industries. Thermal power plants, जिससे कि सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब लंग डिजीज कॉज कर रही हैं. व्हीकुलर एमिशंस हम पढ़ चुके हैं. नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स जो हैं वो 3 लाख थे 1951 में, which has increased to 67,000 crore in 2003. India is one of the 10 most industrialized nations of the world, but this status has brought it unwanted and unanticipated consequences like unplanned urbanization, pollution, the risk of accidents. तो हमारा जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है which are significantly polluting in nature. Now let us analyze challenges to environment. The various measures adopted by Ministry of Environment and the central and state pollution control boards इतने rewarding नहीं रहे उनके results and efforts. The concern for future generations alone can make development last forever. Development to enhance our current living styles without concern for posterity, that is future generation जो है और ज़्यादा problems create कर रही है और एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस द कॉजेज और फैक्टर्स फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. द वेरी फर्स्ट इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन एनुअली जो है इंडिया में अराउंड 2% की ग्रोथ दिखाती है और जिसकी वजह से ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. फ्रॉम रूरल टू अर्बन बहुत सारे लोग हर साल माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो जॉब्स के
या एम्प्लॉयमेंट की सर्च में निकलते हैं, तो हमें उतने ही ह्यूमन सेटलमेंट्स, टाउनशिप्स एंड सिविक कम्युनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। थर्ड कम्स द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग फास्टर। जब भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और अगर वो अनप्लान्ड है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं, तो इट विल कॉज अ हार्म टू द एनवायरमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल स्मोक, ये सब बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट कम्स द पॉवर्टी। देयर इज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया ड्यू टू इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। When these poor people fail to find jobs, they depend on activities like cutting trees or fuel wood. Those who have small plots of land, they use them intensively without taking care to enhance its productivity. Next comes the increase in pollution. ये बड़े बहुत कॉमन जनरल पॉइंट्स हैं। वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो अपने स्मॉल क्लासेस में भी किए हैं। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये भी हम कर चुके हैं। massive overuse and misuse of environmental resources, और ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट कम्स द मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दिस इज वेरी इजी। जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर कर दो। दीज आर द मेजर्स टू कंट्रोल। जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉल्यूशन ज्यादा है तो पॉल्यूशन कंट्रोल करो। ये बेटे फोकस पॉइंट है। चिपको और ओपिको, व्हाट्स इन अ नेम? यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट वेरी केयरफुली। फिर बात करेंगे हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, सीपीसीबी जिनको हम बोलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि प्रेजेंट जनरेशन उस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करे और डेवलपमेंट करे कि फ्यूचर जनरेशंस भी अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, राइट? ये डेफिनेशन दी थी हमें अनकैड ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैच फ्रेज है वो क्या है? एक है द टर्म नीड एंड द अदर इज फ्यूचर जनरेशन। अब नीड का मतलब क्या है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक मॉरल इशू बन गया है, सबकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो अगर हम एडवर्ड बार्बियर की बात करें तो उन्होंने भी जब अपनी डेफिनेशन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने भी फोकस किया नीड्स पे, राइट? In more specific terms, sustainable development aims at decreasing the absolute poverty, secure livelihoods, जो कि मिनिमाइज करें रिसोर्स डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल डिसरप्शन एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो कैच फ्रेज है दैट इज फ्यूचर जनरेशंस। ब्रंटलैंड कमीशन ने भी जो डेफिनेशन दी उस पर फोकस किया, किस पे? फ्यूचर जनरेशंस पे, राइट? यानी कि बात कर रहे हैं कि स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो एसेट्स हैं वो सेफ गार्डेड रहें ताकि नेक्स्ट जनरेशंस भी इसको यूज कर पाए। आइडेंटिफाई द एरियाज विद विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी कंपैटिबल। तो कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, preservation of regenerative capacity of the world's natural ecological system, and avoiding the imposition of added cost or risk on future generations. What, according to Herman, a leading environmental economist, should be done to achieve sustainable development? तो उन्होंने बोला the following 5 things should be are needed to be done. Limiting the human population, जो हमने बात करी, population control. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए और इनपुट कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन सस्टेनेबल बेसिस। फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रिक्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स। और एयर पोल्यूशन जो अराइज हो रहा है उसमें इनएफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, और है भी तो उनको हमें करेक्ट करना चाहिए। Now let us discuss the strategies for sustainable development. इसका कैच फ्रेज है, it is indeed a paradigm shift in development thinking. इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आज की डेट में एक पैराडाइम शिफ्ट, पूरा शिफ्ट है किसकी तरफ? एक डेवलपमेंटल थिंकिंग की तरफ। ये पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम थर्मल, हाइड्रो पावर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट? लेकिन हमें अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, हमें विंड पावर और सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए।
सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट करते हैं सेल्स इलेक्ट्रिसिटी में, उनको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स। नेक्स्ट इज एलपीजी गोबर गैस, राइट। इसको हमें यूज करना चाहिए हाउस होल्ड्स में, और हमें ज्यादा वुड, डंग केक या अदर बायोमास यूज नहीं करना चाहिए। सब्सिडाइज्ड एलपीजी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और गोबर गैस प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। सीएनजी का यूज करें हम अर्बन एरियाज में, और दिल्ली में खास करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे ऑलरेडी ऑटो रिक्शास, बसेस, ये सब जो है वो चलने लग गए हैं। विंड पावर के ऊपर हम विंड टर्बाइंस के बारे में जानते हैं, जिनको विंड मिल्स भी बोलते हैं, उनका यूज करना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज में। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल्स, जो हमने अभी बात करी। सोलर एनर्जी हम यूज करते हैं किसके लिए? कपड़े सुखाने के लिए, ग्रेन सुखाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सुखाने के लिए, हम खुद की बॉडी को वार्मथ पहुंचाने के लिए विंटर्स में, और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स भी यूज करते हैं। अब जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते थ्रू वायर्स, थ्रू केबल्स, या आप वहां पे पावर प्लांट नहीं लगा सकते, वहां पर हमें इसका यूज करना चाहिए, जैसे कि रिमोट एरियाज, राइट, या फिर जहां पर पावर सप्लाई या पावर लाइंस पॉसिबल नहीं है, और वाटर जो है एक अच्छा रिसोर्स है। फिर है मिनी हाइडल प्लांट्स, जो मैं बात कर रहा हूँ, वाटर एक अच्छा रिसोर्स है, तो हमें जो भी पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रीम्स, राइट। मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइंस, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्स है। लेकिन अगर हम पावर प्लांट्स की बात करें तो वो लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि वो थर्मल होंगे। दिस मीन्स दैट देयर इज नो नीड फॉर लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर्स। अब बात करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस की, तो हम बात करते हैं आयुष की, जिसमें हम कहते हैं आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्ध, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो है वो ह्यूमन बीइंग क्या था, इट वाज अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बट नाउअडेज इट इज द कंट्रोलर ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स की तरफ आज भी शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बतियन फोक सिस्टम्स, और हेल्थ केयर सिस्टम्स में भी इनकी ग्रेट डिमांड है, लाइक हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, फेस क्रीम्स एंड व्हाट नॉट। नेक्स्ट आया बायो कंपोजिटिंग। It is a process by which plant matter is decomposed and recycled as fertilizer or manure. In our quest to increase agriculture production, हमने तकरीबन 50 years back बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया है, मैन्योर का यूज किया है, लेकिन हमने नेचुरल को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और बायो कंपोस्टिंग जो है आज की डेट में फिर से अपना स्टेटस रीगेन कर रहा है, मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कैटल का जो आर मेंटेन्ड ओनली ताकि वो डंग प्रोड्यूस कर पाए, और हम उसको एज एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर और सॉइल कंडीशनर यूज कर पाए। Earthworms can convert organic matter into compost faster than normal composting. This process is now widely used. Biopest control, यानी कि हम insects, mites, weeds इन सबको कंट्रोल कर पाए। Problems of biopest, ये क्या कहता है? With the advent of green revolution, the entire country entered into a frenzy to use more and more chemical pesticides for higher yields. Soon, the adverse impacts began to show. Even milk, meat, fishes जो हैं, इनको भी हम देख रहे हैं कि ये भी contaminated है। Steps taken to meet this challenge. पहला, लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हमें ये करना चाहिए। नीम ट्रीज जो है इसमें ज्यादा कारगर है। सेवरल टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स, उनको खत्म कर देना चाहिए या यूज करना बंद कर देना चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग अबाउट वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स विच हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट। स्नेक्स आर वन ऑफ द प्राइम ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो रैट्स को, माइस को और वेरियस अदर पेस्ट को खाते हैं। Similarly, large variety of birds, owl and peacock, they prey upon vermin and pest. If they are allowed to dwell around the agriculture areas, they can clear large variety of pests, including insects. Lizards are also important in this regard. We need to know their value and save them. So this is all about chapter 9. Thank you and have a nice day.